Hello students, now we're going to continue the chapter differentiation of 12th standard exercise 1.1 in which all examples are based on the composite functions. So see the question number 1. So the question is differentiating or differentiate with respect to x. So see the first example we are given, that is y is equals to x cube minus 2x minus 1 and bracket raised to 5. The original example is, as I am writing here again, that is x cube minus 2x minus 1 bracket raised to 5. So this is our example, but here I consider this total bracket as a x. So see, there is a small x, faint x you can see here. Why we do like this one, that is there is no any formula of this example. So to solve this example we have to consider this whole bracket as a x, so it can be similar with the formula of x raised to n. Yes, now you know the derivative of x raised to n, that is d by dx of x raised to n is equals to n into x raised to n minus 1. So using this formula we are going to solve this. So first sentence is differentiating with respect to x, so dy by dx is equals to, now see here, n into x raised to n minus 1. So what is n? N is 5, so 5 in bracket, so x raised to n minus 1, that is 5 minus 1, that is 4, and the bracket is as it is, and now we are going to take the derivative of this total part and going to multiply it. So 5 into x cube minus 2x minus 1 bracket raised to 4 into the derivative of this whole bracket, that is x cube minus 2x minus 1. जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एग्जाम्पल को. So 5 into x cube minus 2x minus 1 bracket raised to 4 into, now we are going to take the derivative of this bracket. So the derivative of x cube is 3x square minus 2 and the derivative of constant is 0. Now this is the answer, and the last step we can write like this one. जिसका पावर कम रहता है वो टर्म हम पहले लिखते हैं. So you can write this term at first, that is 5 into 3x square minus 2, and after that you can write this one. ये भी करेक्ट है, अगर ये हम आगे करके लिखते तो थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा. Now see the second example. ये भी इसी टाइप का एग्जाम्पल है, सेम. So here the see the powers, that is 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 and the whole bracket raised to 5 by 2. Now we have to consider this whole bracket as a x. ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल हमें कौन से फॉर्मूले की तरह दिखेगा, x रेस टू n की तरह दिखेगा. यस, सो x रेस टू n का फॉर्म डेरिवेटिव क्या रहता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. सो हमें 5 by 2 आगे लिखेंगे हम. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx इज इक्वल्स टू दिस n and the bracket raised to n minus 1. So 5 by 2 minus 1, मैंने यहाँ पे LCM निकाल के दिखाया है. So the answer is 3 by 2. So यहाँ पे 3 by 2 है. So जिसको मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने हर एक ब्रैकेट के लिए x लिखा है. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जिसको हमने x कंसिडर किया है उससे उस एग्जाम्पल को, मीन्स जो अभी मैंने लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये ब्रैकेट मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये मिला है, उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जो x वाला है मेंबर वो, उसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं. सो ये टर्म अभी हम पूरी की पूरी लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट वाली टर्म आंसर किसका लिखना है हमें, ये डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स के बाद में जो लिखा है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे. नाउ सी अगेन हियर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो 2 इज एज इट इज़, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इनटू अगेन एक्स रेस टू एन, दैट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. सो 3 by 2 यहाँ पे आएगा एंड 3 by 2 माइनस 1. सो द आंसर इज एक्स रेस टू हाफ माइनस अगेन यहाँ पे 3 एज इट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. सो एन एज इट इज, दैट इज 4 by 3 माइनस 1. सो 4 by 3 माइनस 1 करके हमें क्या मिला, 1 by 3. ये 1 by 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे माइनस द डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0. इट इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ अ कांस्टेंट. सो द आंसर ऑफ द कांस्टेंट इज 0.
नाउ दिस टर्म इज एज इट इज. नाउ सी यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल हुआ. सो 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू 1/3. नाउ ये जो है आपको सबको पता है दैट इज कि रूट एक्स इज नथिंग बट द एक्स रेज टू हाफ. यस, अगेन क्यूब रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू 1/3. ये जो हमने लिखा है ये हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू 1/2 जो मैंने अभी दिखाया आपको. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रूट एक्स. और इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स. सो 4 इज एज इट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स. ये 3 ऐसा ही लिखेंगे रूट एक्स एंड दिस ब्रैकेट वी राइट in the last. So this is the answer. Now see the third example. So third example is y is equals to root x square plus 4x minus 7. So see यहाँ पे रूट हमें दिखाई दे. हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा है, हमने डेरिवेटिव रूट एक्स का कैसे निकालते हैं. क्या रूट एक्स का जो फॉर्मूला रहता है वो आप सबको पता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स. सो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा पहला जो स्टेप है दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स. द फॉर्मूला इज 1/2 रूट एक्स. सो 1/2 रूट, ये जो टोटल अंदर जो ब्रैकेट है इसके लिए मैंने एक्स कंसिडर किया है. वो एक्स हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में रूट एक्स है. सो जो हमारा एक्स है वो क्या है, ये ब्रैकेट हमारा एक्स है इनटू हमारा जो एक्स है इसका डेरिवेटिव हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर ये स्टेप आप प्रॉपर लिखते हो तो आगे का आपको बहुत इजी जाएगा. ये स्टेप हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो द एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2x. कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, x रेज टू n, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो 2 आगे आएगा, x रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1. 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 एंड द 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 0. 0 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे. नाउ सी द न्यूमरेटर पार्ट इज एज इट इज, दैट इज 2x प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर मैंने ये लिखा. यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. सो 2 मैंने लिया इन ब्रैकेट x प्लस 2. सो दिस 2 विल गेट कैंसिल विद दिस 2 एंड द रिमेनिंग आंसर इज x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. Now see the example number 4. Again y is equals to root x square plus, अगेन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1. सी यहाँ पे 2 बार रूट आया है, पहला ये वाला बड़ा वाला और उसके बाद ये छोटा वाला. तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कैसे दिखता है मैं थोड़ा सा अलग से दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा एग्जाम्पल है एक्चुअली. ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इस टोटल ब्रैकेट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो अगेन क्या दिख रहा है हमें, रूट वाला एग्जांपल है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रूट, अभी भी हमने सॉल्व किया था, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x. सो डिफरेंशिएटिंग करने के बाद हमें मिला 1/2 रूट x. सो x मेरा वाला x क्या है, ये टोटल जो ब्रैकेट है वो मैंने ऐसे ही लिखा इनटू जो मेरा x है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने जिस ब्रैकेट के लिए वो कंसिडर किया था उसको मैंने डेरिवेटिव में लिख दिया. ये स्टेप हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो यू नो दैट इज 2x n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस, अगेन यहाँ पे रूट x आया है बराबर, लेकिन रूट x नहीं है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये. सो ये टोटल को हम ब्रैकेट करेंगे और उसके लिए एक ही x कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो रूट x का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 रूट x. सो x ऐसे ही आया, दैट इज मेरा x कौन सा है, ये टोटल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो मैंने ऐसे ही लिखा इनटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव. नाउ वी कंटिन्यूइंग दिस एज इट इज. सो ये ऐसे ही आएगा नीचे 2x एज इट इज, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन ये भी ऐसे ही आएगा इनटू वी गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x
एंड 1 इज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव इज 0. देखो ये यहाँ पे इनटू है, सो दिस 2 विल गेट कैंसिल विद दिस 2. सो वी हैव टू राइट डाउन द रिमेनिंग स्टेप्स. सो फर्स्ट वन इज एज इट इज. यहाँ पे क्या है बैलेंस हुआ है, दैट इज 2x प्लस यहाँ पे ऊपर क्या है x, और डिनोमिनेटर में रहेगा x स्क्वायर प्लस 1. नाउ ये ऐसे ही हम रखेंगे इनटू, अगेन वी गोइंग टू टेक द एलसीएम. सो एलसीएम इज x स्क्वायर प्लस 1. नाउ वी टेकिंग द क्रॉस, दैट इज 2x रूट x स्क्वायर प्लस 1, एंड ये क्रॉस करके आएगा x. एंड नाउ जस्ट वी गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन. यहाँ पे 1 है तो ये टर्म ऐसे ही रहेगी ऊपर, और ये दोनों हम ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में सिर्फ लिखेंगे, उसका कुछ नहीं होने वाला. सो दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 4. And similarly you have to solve the example number 5 and 6. I am starting with the question number 2. So question number 2 भी वैसा ही है, सिर्फ इसमें अभी trigonometric functions आए. So again the question is same, that is differentiating with respect to x. So y is equals to cos x square plus a square. Now see, हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, कि हमें cos x का फॉर्मूला पता है. cos x का फॉर्मूला हमने सीखा है. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? इट इज माइनस साइन x. लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे क्या दिख रहे हैं हमें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो ये टोटल के लिए हम थीटा और x ऐसा कंसिडर करेंगे. हमारे फॉर्मूले में हमें थीटा लिखा था, सो ये टोटल वाला जो है वो हमें थीटा है ऐसा कंसिडर करूँगी, ये cos थीटा है. सो जो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट वाले लेक्चर में बताए थे, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, that is the cos x is equals to minus sin x, और cos theta is equals to minus sin theta. So यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट. सो माइनस साइन x और माइनस साइन थीटा इंटू जिसके लिए मैंने थीटा लिखा था उसका डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो माइनस साइन ये ऐसा ही आएगा डी बाई डी एक्स. यहाँ पे एक ध्यान में रखना है आपको, x छोड़ के जो भी इसमें आया है वो क्या है, कांस्टेंट. यहाँ पे a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, 2x. सो ये 2x हम आगे लिखेंगे. सो माइनस साइन एज इट इज, 2x को मैंने पहले लिखा, माइनस ये टर्म ऐसे ही. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. So y is equals to in root e raised to 3x plus 2 plus 5. Now see, यहाँ पे कौन से फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. एक फर्स्ट दैट इज रूट एक्स वाला दिखाई दे रहा है, बाद में e raised to x का भी दिखाई दे रहा है. सो हम वन बाय वन एक एक को सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, तो रूट दिखा है. सो इसका जो ये टोटल ब्रैकेट है इसके अंदर, मैं एग्जाम्पल फिर से लिखती हूँ यहाँ पे. So in bracket e raised to 3x plus 2 और यहाँ पे क्या है 5. ये जो मैंने टोटल ब्रैकेट डाला है, इस टोटल ब्रैकेट के लिए मैं क्या कंसिडर करने वाली हूँ, x. So what is the derivative of root x? That is 1 upon 2 root x. So x मेरा क्या है, ये टोटल ब्रैकेट को, वो ब्रैकेट मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा इनटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव. सो डी बाई डी एक्स ऑफ ये टोटल ब्रैकेट का हमें डेरिवेटिव लेना है. सो नेक्स्ट वन, दैट इज 1 अपॉन ये टर्म ऐसे ही आएगा इनटू. नाउ सी यहाँ पे डेरिवेटिव हमें किसका लेना है, e रेस टू 3x प्लस 2. लेकिन इसका फॉर्मूला भी हमने नहीं सीखा है, हमने सीखा है e रेस टू x का फॉर्मूला. सो ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इस टोटल ब्रैकेट को मैं क्या करूँगी, ये x ऐसा कंसिडर करूँगी. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x? e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही रहता है इनटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव. सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? सिंस इट इज अ कांस्टेंट, द डेरिवेटिव इज 0. नाउ दिस टर्म इज एज इट इज इनटू e रेस टू 3x प्लस 2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, yes, what is the derivative of 3x? So it is 3. Again it is a constant, so derivative 0. तो देखो यहाँ सब के बीच में इनटू साइन है. सो हम ये 3 को पहले लिखेंगे
ये टर्म उसके बाद में मैंने लिखा और नीचे का ऐसे ही आया. So this is the answer. Now see the third example. So y is equals to log of tan x by 2. Now see यहाँ पे भी हमें किसका फॉर्मूला पता है, log x का फॉर्मूला पता है. सो ये टोटल जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के लिए मैंने क्या कंसिडर किया है, x. So differentiating with respect to x. So what is the derivative of log x? It is 1 by x. So 1 upon tan x by 2 into जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x by 2. सो ये ऐसे ही आएगा इंटू व्हाट इज द नाउ, यहाँ पे भी tan x by 2 है. x by 2 का फॉर्मूला पे हमें पता नहीं. सो किसका पता है, x वाला. सो ये टोटल ब्रैकेट के लिए हमने x कंसिडर किया. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? इट इज सेक्स स्क्वायर x. सो सेक्स स्क्वायर x को मैंने ऐसे ही लिखा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये x by 2. सो x by 2 मैंने थोड़ा सा ऐसा करके लिखा है. ये दोनों भी टर्म्स ऐसे ही आएंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो हाफ ऐसे आएगा, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इट इज हाफ. नाउ सी हाउ वी कैन राइट. सो tan we can write like sin upon cos. x by 2 is as it is into sec square x हम लिखेंगे 1 upon cos square x by 2 into half. Now so by inverting this we will get cos x by 2 upon sin x by 2, 1 upon cos square x by 2 and half is as it is. Now this one cos is cancelled with this one cos. So the remaining terms how we can write. So 1 upon ये 2 जो लास्ट में है उसको मैंने आगे लिखा sin x by 2 into cos x by 2. Now see you learn this formula. Just compare it. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो उसको हम हाफ करते हैं. अगर सिंगल होगा तो उसका हाफ करेंगे. सो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. यहाँ पे हमें ऐसे ही टर्म दिख रही है. सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज साइन एक्स, दैट इज 1 upon sin x. And what is 1 upon sin x? It is cosec x. Now the next example, example number 4. Y is equals to root tan of root x. Now see double root यहाँ पे आए. ये जो ब्रैकेट में है that is tan root x. इस टोटल के लिए मैंने x कंसिडर किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो रूट x का डेरिवेटिव रहता है 1 upon 2 root x. सो 1 upon 2 root x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दैट इज tan root x. ये ऐसे ही आएगा. सो tan root x का फॉर्मूला पता नहीं, सो इसके लिए हम x कंसिडर करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ tan x इट इज सेक्स स्क्वायर x. सो सेक्स स्क्वायर x मैंने ऐसे लिखा इंटू अगेन जो रूट x है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसके लिए मैंने x कंसिडर किया था. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट x. ये दोनों भी टर्म्स ऐसे ही ऊपर के नीचे वैसे ही आएंगे. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? इट इज 1 upon 2 root x. सो सेक्स स्क्वायर रूट x अपॉन दिस इज 2 2s are 4, this root x and the second term is root of tan root x. Now see the example number 5. That is y is equals to cot cube in bracket log of x cube. So ये जो टोटल एग्जाम्पल है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज cot log x cube. इसका टोटल मैंने क्यूब लिखा है. जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको एक बताया था, दैट इज अगर हमें ऐसा दिया है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. सो सिमिलरली आई राइट हियर 3. अगर नहीं लिखा तो भी आप कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल ये फॉर्मूला हम किससे मैच करेंगे, दैट इज एक्स रेस टू एन. यस टोटल ये एक्स है, एक्स रेस टू एन. सो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. सो ये एक्स है मेरा, ऐसे लिखा मैंने 3 - 1 दैट इज 2 इंटू जिसके लिए मैंने एक्स कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. अब ये टर्म ऐसे ही आएगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये जो टोटल ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब. इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है, सो ये ब्रैकेट के लिए हम एक्स कंसिडर करेंगे. सो क्या दिखाई दे रहा है, कॉट एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स? इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सो कोसेक स्क्वायर एक्स मीन्स लॉग ऑफ एक्स क्यूब मैंने ऐसे ही लिखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसके लिए मैंने एक्स कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दैट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब. नाउ ये दोनों भी टर्म्स ऐसे ही नीचे आएंगे. नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स क्यूब है. लॉग एक्स क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता,
सो एक्स क्यूब के लिए मैंने क्या कंसिडर किया, एक्स. सो लॉग एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इट इज़ 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स मेरा क्या है अभी, एक्स क्यूब है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसके लिए मैंने एक्स कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, दैट इज एक्स क्यूब. नाउ ये तीनों भी टर्म्स ऐसे ही नीचे आएंगे, 1 2 एंड 3, ये 3 में ऐसे ही लिखे मैंने. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3x square. Now this x square is cancelled with this x square and x is remaining. So we have to write down the last step. सबके बीच में इंटू साइन है. सो ये पहला वाला माइनस साइन मैं यहाँ पे दे दूँगी. सो 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9. यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, वो x यहाँ पे आएगा. ये ब्रैकेट एज इट इज़, ये वाला ब्रैकेट भी एज इट इज़. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is all about the question number 2 and the remaining examples of question number 2. I think there are total 18 examples in question number 2. The remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.